Good morning. Welcome to DME 102, Engineering Drawing 1. And we will start with the same topic, which we did in the last lecture, that is projection of a straight line. And in the last lecture, we have understood the basic conditions of the straight line. The basic conditions of the straight lines were the line is parallel to HP and VP was this, and the is parallel to VP is this. Then line is perpendicular to VP and parallel to HP is this. Line is and parallel to VP. Line is inclined to HP and parallel to VP. Then fourth condition is line is inclined to VP and parallel to HP. Inclined to VP, line elevation, true length in plan. Second condition, perpendicular to HP, parallel to VP. And in plan, then the line
तो आपका जो कंडीशन होगा, line AB is in HP. So suppose this is HP. This is HP. This line is your XY line, reference line. And this is VP. Lying in HP. So this is lying in HP. Right now, line is parallel to VP. Right now, line is parallel to VP and is in the HP. अगर मैं इसको यहां से व्यू करूं तो यहां से जो डिस्टेंस है वो 0 है, ना अबव है ना बिलो है, इज ऑन द एचपी एंड संग जो वीपी है उसके पैरेलल है. दिस इज वीपी एंड पैरेलल इंक्लाइन टू 30 डिग्रीज टू वीपी. यहां से 30 डिग्रीज का एंगल बनाती है. So the final condition of the line is this: AB. इनिशियल कंडीशन हमने क्या लिया? ये लिया जिसमें हमने एंगल ले लिया था 0 डिग्रीज, मींस पैरेलल, बट गिवन इज 30 डिग्रीज विद द वीपी. तो वीपी से इसने 30 डिग्रीज बनाया. अब इसका प्रोजेक्शन आएगा जब हम इसको व्यू करेंगे एलिवेशन के लिए. तो यहां से आपका जो पॉइंट है वो XY लाइन के ऊपर ही आ जाएगा, दैट विल बी योर A डैश. और यहां से इसका प्रोजेक्शन आ जाएगा XY लाइन के ऊपर अगेन, दैट विल बी B डैश. करेक्ट. और जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसके ऊपर इसकी ट्रू लेंथ नजर आएगी 80 mm, दैट विल बी पॉइंट A एंड B. नाउ what will happen? HP will rotate by 30 degrees. Will rotate by 30 degrees. So this point will come here and this point will come here. So this is your HP now. ये जो डिस्टेंस है आपका ये यहां आ जाएगा. This is your AB. This is your A dash B dash. अब इसको जब हम बनाएंगे XY लाइन फॉर्म में, क्या होगा? एंड A is 20 mm in front. एक पॉइंट और जो हम मिस कर गए क्वेश्चन में, एंड A is 20 mm in front. तो यहां से 20 mm डिस्टेंस लेके इन फ्रंट यहां पर आपका पॉइंट A आ जाएगा. एंड बिकॉज इट इज ऑन द HP, तो आपका A डैश XY लाइन के ऊपर आ जाएगा, जैसे यहां पर था जो आपने अर्लियर फिगर में देखा था, जो इनिशियल फिगर बनाई थी हमने. A डैश XY लाइन के ऊपर है तो A डैश यहां आ जाएगा और A डैश से 20 mm नीचे आके इन फ्रंट आ जाएगा. दैट विल बी योर पॉइंट. नाउ द एलिवेशन इज, एलिवेशन के संग क्या बनता है? द एंगल गिवन विद HP फाई कितना दिया हुआ है? 30 डिग्रीज. तो यहां से 30 डिग्रीज
इस पॉइंट से 30 डिग्रीज लेकर विद द हेल्प ऑफ योर प्रोटेक्टर 30 डिग्रीज लेकर आप लाइन ड्रॉ करेंगे एंड उसमें से 70 mm, this length is given as 70 mm, कट कर लेंगे. So this point will be your point B. इसका प्रोजेक्शन ऊपर लेके जाएंगे. कहां तक लेके जाना होगा? XY लाइन तक. Why? Because it is on HP. तो अगर आप दोबारा से यहां पर देखें, एंड बी जब ये यहीं पर रखा हुआ है तो एंड बी भी XY लाइन पे आ गया, तो बी डैश भी यहां पर आ गया. ओके, so point B dash is on XY line. Point B dash is on XY line. What will be the final plan and elevation? This AB is the final plan and A dash B dash is the final elevation. Dimensioning 20 and true length आपने पहले ही यहां पर 70 मार्क कर लिए. So this is your question number 24. Okay. Now, question number 25. Question number 25 is, a straight line AB 70 mm long makes an angle 30 degrees with the HP and parallel to VP. Its and A is 10 mm above the HP and 15 mm in front of the VP. Draw the projections. A straight line AB 70 mm long means true length is 70 mm. Its end is making 30 degrees with the HP. Okay? 30 degrees banati hai. Means theta is given. Theta is 30 degrees. This is angle with HP. Theta किसके संग बनेगा? With elevation. The angle line making angle with HP will be drawn in elevation, क्योंकि वो elevation में आपको नजर आएगा. Next condition is given, and A is 10 mm above the HP and 15 mm in front of the VP. And A is 10 mm above HP and 15 mm in front of VP. 10 mm above, 15 mm in front of VP. Draw the projections of the line. Draw the projections of the line. Okay. So these are the inputs. True length is 70 mm. Angle with the HP, and A is 10 mm above, 15 mm in front. Draw XY line with H grade pencil, and then you start the question with the point given as 10 mm above HP. जो दिया हुआ है उसमें हमको ये देखना है कि सबसे पहले उसका जो पॉइंट, उसकी पोजीशन क्या है. वो पॉइंट PQ है, पॉइंट AB है, पॉइंट CD है, कुछ भी हो सकता है. तो यहां पर जो दिया हुआ है वो पॉइंट A दिया हुआ है. So is 10 mm above.
यहां से 10 mm के ऊपर चले जाएंगे विद द हेल्प ऑफ योर सेट स्क्वायर। 10 mm ऊपर चला जाएगा और उसके बाद लिख दिया जाएगा a dash। why a dash? because the distance given with the HP will be your elevation height। एलिवेशन कितना ऊपर है? 10 mm, क्योंकि एचपी से जो दूरी है वो आपको एलिवेशन में दिखाई दे रही है, और वीपी से जो दूरी है मतलब इन फ्रंट और बिहाइंड वो आपको प्लान में दिखाई देगा। देन नेक्स्ट इज 15 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। 15 mm, अब इसी लाइन से हम नीचे आ जाएंगे। कितना? 15 mm। अगेन विद द हेल्प ऑफ योर स्क्वायर आप 15 mm नाप कर यहां क्या लिख देंगे? A। So what is A dash? Is the elevation. What is A? Is the plan. So to make the to make a difference between elevation and plan, we put a dash on elevation। दोनों में डिफरेंस करने के लिए हम एलिवेशन के ऊपर डैश लगाते हैं और प्लान को एज इट इज छोड़ देते हैं। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू गिवन in the question? The line is parallel to VP and making 30 degrees to HP. Line is parallel to VP means phi is given 0 degrees and theta is given 30 degrees. Okay? Phi is given 0 degrees and theta is given degrees. तो ये जो थीटा दिया हुआ है ये किसके संग बनेगा? एलिवेशन के संग। जो फाई है ये किसके संग बनेगा? प्लान के संग। एलिवेशन क्या है? ए। एलिवेशन क्या है? ए डैश। प्लान क्या है? ए। प्लान क्या है? ए। ओके, वैल्यूज की ए डैश दिया हुआ है हमारा, सॉरी थीटा दिया हुआ हमारा 30 डिग्रीज। तो यहां से हम 30 डिग्रीज विद द हेल्प ऑफ योर प्रोटेक्टर यहां पर रखकर 30 डिग्री का कोण नाप के आप लाइन ड्रॉ करेंगे 30 डिग्री। ओके, एंड उसमें से ट्रू लेंथ कट कर लेंगे 70। ट्रू लेंथ आप कट कर लेंगे 70। दिस टेंशन लाइन 2H grade pencil 15 mm point and erase all the extra lines। जितनी ज्यादा लाइन खिंच गई है वो हटा देनी है। नाउ ड्रॉ दिस पॉइंट विल बी योर B dash। दिस इज A dash, दिस इज B dash। इसमें से ये ट्रू लेंथ कट कर पॉइंट A से फाई इज गिवन एज 0 डिग्रीज, तो ये आपका जो प्लान लेंथ है वो 0 डिग्रीज पे ड्रॉ होगा, और यहां से जो एलिवेशन है उससे एक प्रोजेक्शन आ जाएगा। जहां पर भी इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट आपका हो जाएगा पॉइंट बी। दिस विल बी योर पॉइंट बी। तो फाइनल प्लान इज ए बी एंड फाइनल एलिवेशन इज ए डैश बी डैश। ये जो आप लाइन की थिकनेस इंक्रीज कर रहे हैं ये आप H ग्रेड पेंसिल से कर रहे हैं। You have to increase the thickness of the line. So you can see the line thickness here. It's a thin line, projector बोलते हैं। ये 2H ग्रेड की पेंसिल से बनता है एंड ये आपके फाइनल रिजल्ट है, ये H ग्रेड की पेंसिल से बनता है। एंड XY विद द H ग्रेड पेंसिल मीडियम थिकनेस है आपकी। आपके डायमेंशनिंग ये जो लिखा जाएगा ये 70 mm HB। प्रिंटिंग हमेशा HB ग्रेड से करेंगे। आपके जो एरो हेड है ये H ग्रेड पेंसिल से बनेगा। अदरवाइज जो एक्सटेंशन लाइन और डायमेंशन लाइन है ये 2H ग्रेड पेंसिल जिससे कि हमने प्रोजेक्टर बनाया है उससे बनेगा। ओके, सो दिस विल बी द फाइनल
projection for question number 25. Question number 24 was this. इसमें क्या था? The line is on HP. इसलिए इसका एलिवेशन XY लाइन के ऊपर आ गया. कोई भी दूरी नहीं दी थी. It's on the HP, 0 mm from the HP. And 20 mm in front. इसलिए ये पॉइंट आपका नीचे आ गया था. इसमें एंगल क्या दिया हुआ था? फाई, जो कि हमारा प्लान के संग बना. और यहां पर क्या एंगल था? बिकॉज इज ऑन द HP मींस थीटा इज 0 degrees पैरेलल टू HP. You can understand like this: something is lying on the ground means that object is parallel to the ground. ऐसे ही यहां पर जब वो HP पे रखा हुआ है तो वो HP के पैरेलल है, मतलब थीटा 0 degrees दिया है. और यहां पर जो एंगल दिया है फाई वो 30 degrees. तो इसमें यहां पर हमने प्लान के संग फाई बनाया था और यहां एलिवेशन ऑन द XY लिया था. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 25 what is given? The point A is 10 mm above. तो ये हमने यहां पर 10 लिया एंड 15 mm इन फ्रंट. ये डिस्टेंस हमने यहां 15 लिया. एंड ए की पोजीशन क्या हुई? अबव एंड इन फ्रंट. इफ यू सी दिस, अबव एंड इन फ्रंट, तो अबव आ गया आपका डैश मींस एलिवेशन, इन फ्रंट मींस प्लान, वो नीचे आ गया. ओके. नाउ फर्दर the dimensions, the data are given that line is making 30 degrees with the HP. Line is making 30 degrees with the HP means theta is given. अगर थीटा अगर दिया हुआ है तो वो किसके साथ बनता है? एलिवेशन के संग. सो एलिवेशन ए डैश के ऊपर हमने 30 डिग्रीज के ऊपर लाइन ड्रॉ किया और उसमें से 70 mm कट करके पॉइंट जो आया वो आ गया बी डैश. Here, line is parallel to VP. VP के पैरेलल दी हुई है, इसका मतलब फाई 0 डिग्रीज दिया है. तो ये किसके साथ बनता है? प्लान के संग. तो प्लान के साथ मैंने 0 डिग्रीज के ऊपर लाइन ड्रॉ किया और एलिवेशन से प्रोजेक्शन नीचे की तरफ जहां इंटरसेक्शन आया, दैट विल बी योर प्लान ऑफ एंड बी. तो दिस इज द प्लान एंड फाइनल एलिवेशन इज ए डैश B dash. This is question number 25. Question number 26. Question number 26. Question number 26 says the length of the top view of a line AB is 50 mm. The length of the top view means plan length. Plan length is given 50 mm. The length of the top view of a plan is 50 mm. Line is parallel to VP and inclined at 45 degrees to HP. Line is parallel to VP means phi degree is 0 degrees, theta degree is 45 degrees. What is theta? Theta is the angle which line is making with HP. Line is making with HP. This is theta. Line is making with VP is denoted by phi. When it is parallel to VP means it is 0 degrees. When it is making 45 degrees to HP means theta is 45 degrees. आगे वो कहता है कि the end A is 10 mm above the HP and 15 mm in front of the VP. Draw the projection of the line and determine its true length. A is 10 mm above and 15 mm in front. 10 mm above and 15 mm in front of VP. करेक्ट. अब
बात को दोबारा से समझते हैं। इसमें ये कहते हैं अ लाइन ए बी, इट्स प्लान लेंथ और टॉप व्यू लेंथ इज 50 mm, is parallel to VP and inclined at 45 degrees to HP. Its end A is 10 mm above the HP and 15 mm in front of the VP. Draw the projections. Draw the projections. Okay. So this is XY line. You can take a XY line with H grade pencil. Now what is not given? इस कंडीशन में अगर आप देखें तो यहां पर आपको ट्रू लेंथ नहीं दिया है, ट्रू लेंथ नहीं दिया, लेकिन उसकी जगह क्या दे दिया है? प्लान लेंथ दे दिया। ट्रू लेंथ नहीं दिया है, उसकी जगह क्या दे दिया? प्लान लेंथ दे दिया। तो एज टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर, वी कैन कैलकुलेट ट्रू लेंथ इफ द प्लान लेंथ और द एलिवेशन लेंथ इज गिवन। हम प्लान लेंथ या एलिवेशन लेंथ कुछ भी दिया हो तो उसकी हेल्प से ट्रू लेंथ निकाल सकते हैं, और अगर हमको ट्रू लेंथ दिए तो उससे हम प्लान लेंथ और एलिवेशन लेंथ निकाल सकते हैं। तो लेट्स डू इट। पॉइंट ए इज 10 mm above and 15 mm in front. Now you can draw a straight line. आप इस तरीके से इसको सेट करिए अपने सेट स्क्वायर को कि यहां आपका 10 mm ऊपर और 15 mm नीचे एक बार में एक लाइन आ जाए। अलग अलग करने पे कनेक्टिव उसका जो लाइन का कंटिन्यूएशन है उसमें ब्रेक आता है। तो यू कैन डू दिस। अब ये 10 अबव हो गया तो ये हो गया ए डैश, 15 इन फ्रंट आ गया तो ये पॉइंट हो गया ए। ओके, नाउ व्हाट इज गिवन इज phi is equal to 0 degrees is parallel and plan is 50 mm। मतलब प्लान मींस यहां पर आपका ए बी मींस ए ये रहा, तो बी मेरे को किस पे निकाल 0 डिग्री, क्योंकि प्लान आपका जो है वो फाई के फाई दिया 0 डिग्री, तो मैंने यहां पर 0 डिग्रीज के ऊपर लाइन ड्रॉ किया। फाई इज 0 डिग्रीज और इसमें से ये जो कट किया डिस्टेंस, ये कट किया 50। द प्लान लेंथ इज 50 mm। प्लान लेंथ इज 50 mm का मतलब ये एंड आ गया बी, दिस इज एंड बी, दिस इज ए is 50 mm at 0 degrees. Why? Because it is parallel to VP. It is parallel to VP. That is why it is at 0 degrees. अब मेरे को क्या निकालना है? प्रोजेक्शन पूरा करना है, मतलब बी डैश निकालना है। आई हैव टू फाइंड आउट बी डैश। ए डैश पता है, ए पता है, बी पता है, बी डैश निकालना है। तो बी डैश कहाँ आएगा? बी डैश बी की लाइन में कहीं पर आएगा, समवेयर इन द अलाइन टू द बी, क्योंकि प्लान एंड एलिवेशन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। दैट इज द रूल ऑफ द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कि किसी भी पॉइंट का प्लान और एलिवेशन अलाइंड रहेगा। तो अगर बी यहां है, इसका मतलब बी डैश इस लाइन में कहीं पर आना चाहिए। अब मेरे को तीसरी चीज जो पता है वो पता है कि एचपी से एंगल दिया 45 डिग्री, तो थीटा किसके साथ बनता है? एलिवेशन के साथ। थीटा एलिवेशन के साथ। अगर मैं यहां से 45 डिग्री के ऊपर लाइन ड्रॉ करूं, वो जाके जहां पर भी कट करेगा प्लान वाले आपके प्रोजेक्टर को, तो वो एंड आ जाएगा आपका बी डैश, एलिवेशन ऑफ एंड बी, दैट इज बी डैश। आई रिपीट, 10 mm above, 15 mm in front, then plan length 50 mm at 0 degrees because it is parallel, then a line from B, vertical line, because B dash will be lying in this line only. Then at A dash I can draw theta. Theta value is given as 45 degrees. So I'm making a line, I'm drawing a line at 45. Wherever this line is intersecting, the projector from B will give you B dash, the elevation of B. So what is the final plan and elevation? The final plan is AB and final elevation is A dash, B dash. These two lines will be made thicker. इसको बस थिक करना है
Otherwise, the line work will be as the projectors will be drawn thin, dimension lines thin, extension lines thin, and arrowhead 1:3 ratio. The dimensions will be given as 50 your plan length. Now here you can calculate the true length and you can write down the length of the true length. So this is the length of the true length. So this is your question number 26. Question number 20. Question number 27. Question number 27 is 1 and A of a line AB, 80 mm long, is in both the planes. Line makes an angle 30 degrees to HP and 45 degrees to VP. Draw projections. 1 and A of a line AB, 80 mm long. Let's note down the data as given. True length of line AB is 80 mm. Line is AB. True length is 80 mm. Its end A is in HP and VP both. क्या मतलब हुआ इसका? इसका जो सिरा A है वो HP में भी है और VP में भी है. Means it is not above, it is not below, it is not in front, it is not behind. So the end A is on the HP and VP both, means it is on the reference line. अभी आपको explain करते हैं how it will be. Then next given is the line makes an angle 30 degrees to HP. 30 degrees to HP. मैं आप सीधे theta लिख रहा हूं because now I know that theta angle will be made with elevation और ये वो है कि line HP से बना रही है and is making angle 30 degree 45 to VP. मैंने सीधे यहाँ phi लिखा, इसका मतलब लाइन जो है VP से बना रही है. अब इन दोनों को दोबारा से रिपीट करते हैं. जो आपका थीटा है ये हमेशा एलिवेशन के संग बनेगा. जो आपका फाई है ये हमेशा प्लान के संग बनेगा और एलिवेशन में इसकी ट्रू लेंथ होगी, प्लान में इसकी ट्रू लेंथ होगी बिकॉज बोथ द एंगल्स आर द रियल एंगल्स. दीज आर नॉट द एपरेंट एंगल्स, बोथ आर द रियल एंगल्स. ओके, अब इसको समझते हैं कि जो लाइन है वो एक्चुअली प्लेस कैसे है. ओके, लाइन प्लेस आपकी जो प्रोजेक्शन है वो ये दिया हुआ है. दिस इज एचपी एंड दिस इज वीपी. दिस इज लाइन. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मेक इट द लाइन इज इन एचपी. लाइन इज इन एचपी. इससे इतना डिस्टेंस लिया हुआ है, इतना इन फ्रंट. अब क्या किया मैंने, इसको यहां ले लिया. So you can say that the line is in HP and VP both. You can say that the line is in HP and VP both. If you see this, the side view, then this is HP, this is VP. Line is like this. Line is kept like this. Okay, it is in the HP and in the VP. You can see this. अब वो कहता है कि इसका एक सिरा, कि कोई भी एक सिरा जो है वो HP और VP में रखा हुआ है. It is kept in the HP and VP both. ठीक है. अब यहाँ पे जो लाइन है वो पहले एंगल बनाती है थीटा डिग्रीज, मतलब 30 डिग्रीज विद HP. आप देख पा रहे हैं ये HP के संग एंगल बन रहा है. HP के संग एंगल बन रहा है 30 डिग्रीज. ये बन गया. ओके, देन अभी ये पैरेलल है VP से, VP में ही रखा हुआ है. अब इसके बाद लाइन को एंगल बनाते हैं VP से. इज मेकिंग 45 डिग्रीज विद VP. तो क्या हुआ साहब, कंडीशन ये आ गई, जब मैंने 30 डिग्रीज किया तो ये पॉइंट फिक्स हो गया.
जब मैंने 30 डिग्रीज किया तो ऊपर वाला पॉइंट ये फिक्स हो गया कि यहीं पर आएगा। दिस पॉइंट इज फिक्स नाउ, ये पॉइंट जो आपका फिक्स हो गया कि यहीं आएगा। अब उसके बाद इसको ऐसे ही रख के मैंने वीपी से एंगल बनाना शुरू किया 45 डिग्री। तो लाइन का फाइनल कंडीशन ये आ गया, लाइन का फाइनल कंडीशन ये आ गया, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि एचपी से भी एंगल बना हुआ है, एचपी से भी एंगल बना है और वीपी से भी एंगल बना हुआ है। एचपी से भी एंगल बना हुआ है और वीपी से भी एंगल बना हुआ है। ये एंगल बना रही है 45 डिग्री। ओके, दिस इज द कंडीशन। So the line is kept like this. It is making 30 degrees with HP and 45 degrees with VP. अब इसको यहां पर समझना ये है इस बात पे कि हो क्या रहा है इसमें फाइनली। जब इसको मैं इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, मैं दो पेंसिल लेके चलता हूं। आई विल टेक टू पेंसिल्स। जैसे मैंने पहले भी बताया, एक पेंसिल कंडीशन बताएगी एचपी से, एक पेंसिल कंडीशन बताएगी एचपी से। तो एचपी से जो एंगल बना वो ये बन गया। ओके, अब इसने ये फिक्स कर दिया कि ये सिरा जो है मेरा यहां पर फिक्स है, दिस एंड इज फिक्स हियर। राइट नाउ इट इज मेकिंग एंगल विद एचपी, राइट नाउ इट इज मेकिंग एंगल विद एचपी। ठीक है, एचपी के संग एंगल बना है। तो आपका ये एंड तो फिक्स है ही, और उसके बाद दूसरा एंड यहां फिक्स हो गया। नाउ द लाइन विल बी मेकिंग एंगल विद बीपी ऑल्सो। जब ये वीपी से एंगल बनाएगी तो ये जो एंड है, ये जो एंड है, अगर मैं इमेजिन करूं यहां पे एक प्लेन है, देयर इज अ इमेजिनरी प्लेन, तो ये प्लेन हमेशा इसके टिप को टच करता रहेगा अगर वो वीपी से कोई भी एंगल बना रहा है। ओके, so the locus of this end will be always in this plane. ये इसका ही पाथ अगर हम मूव करते जाएं तो हमेशा इस प्लेन में ही मिलना चाहिए। करेक्ट? ओके, कैन यू अंडरस्टैंड दिस? द HP, देन यू कैन इमेजिन द प्लेन। उसके बाद जो VP से एंगल है, आप कुछ भी बनाइए, चाहे उसको परपेंडिकुलर कर लीजिए, तब भी आपका ये जो आपने इमेजिन किया है ये आपका एक फिक्स हो जाएगा। इसी तरीके से अगर एंगल बना VP से, एंगल VP, अब उसके बाद ये फिक्स हो गया। नाउ यू इमेजिन दैट देयर इज अ प्लेन। अब लाइन HP से कुछ भी एंगल बनाए, लाइन HP से कुछ भी एंगल बनाए, इस प्लेन में ही रहेगा। तो दिस इज द फंडामेंटल बिहाइंड दिस। तो नाउ we'll draw the question. We'll draw the question. It is, the line is making 30 degrees with HP and 45 degrees with VP when its and A is HP and VP. HP और VP में है तो हमने ये समझ लिया कि A dash और A XY लाइन के ऊपर ही आएगा। तो पहला आपका जो पॉइंट है A dash, वो XY लाइन के ऊपर ही आएगा। Plan and elevation both will be on XY line because it is on the HP and VP. HP and okay. Then is making, first we will take the angle with HP. Line is making 30 degrees. Line is making 30 degrees. तो यहां से एलिवेशन में 30 डिग्रीज के ऊपर एंगल बनाएंगे और ये जो लेंथ है वो ट्रू लेंथ के बराबर कट कर लेंगे। जो ट्रू लेंथ है वो 80 दिया हुआ है, इज इक्वल टू 80, तो 80 mm लेकर यहां कट कर लेंगे। और we can write here as B1 dash. Why B1 dash? Because this is not the final elevation of end B, and B final elevation नहीं है। Okay, then is phi is given as 45 degrees. अब हमें मालूम है कि जो phi है वो प्लान के संग बनता है। Where is the plan? This is here. यहां से मैं 45 डिग्री के ऊपर लाइन ड्रॉ करके जो 80 mm लिया है, with the divider I'll
take the same distance, 80 mm here, and this will be your B1. Why B? This is not the final plan of end B. Equivalent to true length 80 cut किया. Okay. Now draw the projection from the elevation up to the plan. कहाँ है इसका प्लान? ए ये रहा, तो मैं यहां से लेकर यहां तक लेके आऊंगा. अब ये जो डिस्टेंस आया हमारा, ये दिस इज योर प्लान लेंथ. कल का अगर आपको लेक्चर याद है, इफ द लाइन इज पैरेलल टू एक्स वाई लाइन, then the true length in elevation will give the plan length. True length in elevation will give the plan length if the other view is parallel to xy line or on the xy line. So ये आपका plan length आ गया, this much. अब A को यहां पर सेंटर एंड डिस्टेंस को रेडियस लेकर रोटेट करेंगे. जब ये रोटेट करेगा तो आपका B1 एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा और जहां भी इंटरसेक्ट करेगा वो आपका पॉइंट आ जाएगा B. दैट इज द प्लान ऑफ B. बिकॉज दिस इज द लोकस फॉर B. जैसे अभी हमने समझा था कि B1 अगर यहां है तो B इसी की लाइन में आना चाहिए. B जो आएगा वो इसकी ही लाइन में कहीं पर आएगा. नाउ फॉर द एलिवेशन लेंथ we will see the true length in plan. What is true length in plan? AB1. This is true length in plan AB1. यहां से क्या करना होगा? आप वर्टिकल लाइन कहां तक? जहां तक कि इसका एलिवेशन है. एलिवेशन इज ए यहां पर, तो ये भी आपका एक्स वाई लाइन पे ही आ जाएगा क्योंकि ए डैश दोनों एक्स वाई लाइन पे है. नाउ व्हाट इज द एलिवेशन लेंथ? दिस इज एलिवेशन लेंथ. कितना? This is elevation length. So A dash has a center and this radius, इसको रोटेट जब करेंगे और ये स्ट्रेट लाइन में चलेगा तो यहां पर आ जाएगा B dash. This is your B dash. यहां पर आ गया आपका B, या आ गया B dash. It should be in a straight line. इस एक स्ट्रेट लाइन में आना ही चाहिए. For the rule of the orthographic that plan and elevation both should be in a straight line. Okay. Now join A dash with B dash because this is the final result. Elevation, तो ये thick हो जाएगा. Thickness आपका increase कर देना है because यही requirement. You have to draw the projections. Projections means plan and elevation. A dash, B dash and AB. So this is the plan AB. Now you can give the dimensions. इसको आप लंबा करके extend कर दीजिए extension line को. You can increase the length out of the figure, take it out of the figure and equal to 80 mm. और ऐसे ही यहां पर एक्सटेंशन लाइन लेकर 80 एंड और क्या रह गया? थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्रीज एंड फाई is equal to 45 degrees. अब आपके पास दो एंगल और आ गए. एक आ गया AB का, then you can measure this angle, the apparent angle, which plan is making with XY, and A dash B dash, which elevation is making with XY, beta. तो इससे हमारे पास निकल के आ गई. राइट डाउन ट्रू लेंथ 80 mm. You can make a table. Plan length. You can measure plan length. जो ये आया था आपका एलिवेशन के ट्रू लेंथ से, दिस मच, यहां से लेकर यहां तक, इसको मेजर करके सपोज दिस इज x mm. Then elevation length जो आपके प्लान के ट्रू लेंथ से आया था, यहां से कितना डिस्टेंस, यू कैन राइट डाउन, सपोज दिस इज y mm.
theta is 30 degrees, phi is given as 45 degrees, alpha, you can measure it. Suppose this is A degrees and beta. So suppose this is, because AB is the point, so we can take some value, you can take some value. जो भी आपका मेजरमेंट आएगा वो लिख देंगे. तो ये आपकी जो चीजें हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसका एक टेबल बन जाता है. तो आप इसको शो कर देंगे इस सवाल में जब आपका ये पूरा होता है. ओके. अब इस कंडीशन में अगर आप देखें इसके पहले वाले सवाल में, इसमें अगर आप देखें ट्रू लेंथ यू कैन राइट, प्लान लेंथ अगेन यू कैन राइट, elevation length again the true length is the elevation length, the true length is the elevation because A dash B dash. Theta is 45 degrees given, phi is 0 degrees given, alpha यहां पर जो प्लान है वही अल्फा भी है तो सिर्फ 0 डिग्रीज है. तो आपका जो फाई है अल्फा इज इक्वल टू फाई एंड बीटा इज इक्वल टू थीटा. तो जो वैल्यू आपकी यहाँ कंडीशन है, जो वैल्यू आपकी थीटा है वही बीटा है, जो अल्फा है वो फाई है, एंड प्लान एंड एलिवेशन वो सारी चीजें लिखकर इसमें भी आपकी 7 पॉइंट्स का टेबल बन जाएगा. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 28. Question number 28. One end A of a line AB 70 mm long is 10 mm above the HP and 20 mm in front of the VP. Line makes an angle 30 degrees to HP and 45 degrees to VP. Draw projections of a line AB if and B is in third quadrant. If and B is in third quadrant. अब यहां पर थोड़ा सा चेंज हो गया सवाल. Let us note down first of all the dimensions which are given in the question. The end A of a line AB 70 mm long means length is 70 mm. Then 10 mm above the HP, 20 mm in front of VP, 10 mm above HP, 20 mm in front VP. Line makes an angle 30 degrees to HP. Theta is 30 degrees and phi is 45 degrees. Theta is 30 degrees and phi is 45 degrees. Draw projections if and B is in third quadrant. The most important is now B and B is in third quadrant. And B is in third quadrant. So where is the end A? अगर आप end A देखें तो end A की पोजीशन दिया है above and in front. इसका मतलब ये मिलाकर अगर हम देखें ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट. Above and in front means it is in first quadrant. Okay. Now this is end B which is in third quadrant. अब इस सवाल को हमको ड्रॉ करना है. ड्रॉ द प्रोजेक्शन. पहले इसको कॉन्सेप्चुअली समझें. दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट.
फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट. अब क्या हो रहा है? एंड ए इज 10 mm above and 20 mm in front. ठीक है, 10 mm above and 20 mm in front. ये आ गया साहब एंड ए. सपोज दिस इज एंड ए. line is making angle with HP and VP both. अगर मैं यहां से एंगल बनाऊं तो वो इस तरीके से बन रहा है कि आपका जो सिरा बी है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है एंड बी इज इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड ए इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बी इज इन थर्ड क्वाड्रेंट. इसका मतलब ये हुआ जो लाइन है वो कहीं ना कहीं एक्स वाई लाइन को इंटरसेक्ट करते हुए थर्ड क्वाड्रेंट में नीचे. तो एंड बी का जो वो क्या आएगा? बिलो एंड बिहाइंड. दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट. कॉन्सेप्चुअली अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो सिरा ए है वो अबव दिया है और इन फ्रंट दिया है और उसके बाद जो सिरा बी है वो थर्ड क्वाड्रेंट में एंड बी इज इन थर्ड क्वाड्रेंट. So the line will be drawn in the opposite direction. अभी तक हमने क्या किया था? अभी तक ये था कि आपका एंड ए दिया हुआ है, उसमें 30 डिग्रीज बनाया एचपी के संग, ये बना दिया, और वीपी के संग तो ऊपर की तरफ. मींस बोथ द एंड्स आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. बोथ द एंड्स आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ए एंड बी. बट यहां क्या हो गया? यहां पर ए तो हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में और बी हो गया थर्ड क्वाड्रेंट. There is a difference. There is a difference. तो क्या डिफरेंस आ जाएगा? अभी तक अगर हम इसके सवाल से पहले वाले सवाल को देखें तो वहां पर आपको जो नजर आएगा दिस इज ए डैश एंड दिस इज बी डैश अबव. एक्स वाई लाइन के दोनों ऊपर है. ठीक है. नाउ इफ यू सी द प्लान, दिस इज ए, दिस इज बी. इसको ये एक्स वाई लाइन के नीचे है. ओके, बिकॉज द पॉइंट इज ऑन एक्स वाई लाइन एचपीवीपी, तो यहां पर जो है यहां से शुरू हो रहा है. अदरवाइज अबव एंड इन फ्रंट आपका एलिवेशन ऊपर है, प्लान नीचे है. बट अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? यहां पर अगर हम देखेंगे तो आपका प्लान और एलिवेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे. ओके, हाउ? नाउ प्लीज कंसंट्रेट ऑन दिस. ड्रॉ एक्स वाई लाइन. अभी तक हमको ये मालूम है कि इसको अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट ले रहे हैं तो ऊपर है हमारा वीपी और नीचे है हमारा एचपी. अगर हम ड्रॉ एक्स वाई लाइन, अगर हम इसको ऐसे ले रहे हैं, अगर वो ऊपर है ये वीपी और नीचे है एचपी, तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो ये हो गया, दिस कॉम्बिनेशन इज फर्स्ट क्वाड्रेंट. ओके, लेकिन अब जो सवाल है उसमें कहता है कि जो एंड ए है वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. जो एंड ए है वो ही सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. जो एंड बी है वो थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया. एंड बी जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया. ओके, तो लेट्स स्टार्ट लाइक दिस. एंड ए इज 10 mm above and 20 mm in front. 10 mm above and 20 mm in front. ये क्या पॉइंट आ गया? ए डैश ए डैश और ए. करेक्ट. एलिवेशन हो गया ए डैश ए. एलिवेशन के संग में क्या कर सकता हूं? थीटा. उनके संग रिजल्ट डिफरेंस. तो आपको जो थीटा बनाना है किसके संग बनाना है? एलिवेशन के संग. कहां है वो? ए डैश. ये कितना डिस्टेंस लिया था हमने? 10 mm अबव. और ये कितना लिया? 15 mm इन फ्रंट.
जिससे कि हमको एंड ए का एलिवेशन और प्लान मिल गया। एलिवेशन और प्लान क्लियर हो गया कि ये है। नेक्स्ट स्टेप, थीटा है 30 डिग्री, थीटा इज गिवन 30 डिग्री। ओके, किसके साथ बनेगा थीटा? एलिवेशन के साथ। अब यहां पे हमारे पास चॉइस है कि आप या तो 30 डिग्री ऊपर को बनाओ या 30 डिग्री नीचे को बनाओ। करेक्ट? आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया या नहीं आया, लेकिन आप ये सोच सकते हैं कि अगर मेरा ये ए डैश है तो मेरे को 30 डिग्री बनाना है, तो मैं इधर भी बना सकता हूँ 30 डिग्री और यहाँ पर भी बना सकता हूँ 30 डिग्री, दोनों तरफ बना सकता हूँ। लेकिन किस तरफ बनाने से क्या फर्क पड़ेगा ये देखते हैं। अगर मैं ऊपर की तरफ बनाता हूं तो इसका मतलब हो गया तो बी है, बी डैश वो एक्स वाई लाइन के ऊपर ही आएगा। जो बी डैश है वो एक्स वाई लाइन के ऊपर ही आएगा। अब अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट देखूं तो उसमें एलिवेशन एक्स वाई लाइन के ऊपर रहता है, हमेशा एक्स वाई लाइन के ऊपर रहता है। बट जो पूछा गया है वो क्या है? वो पूछा गया है कि एंड बी इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, मींस द एलिवेशन इज बिलो द एक्स लाइन, द एलिवेशन इज बिलो द एक्स लाइन। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? वीपी नीचे आ जाता है और एचपी ऊपर हो जाता है। करेक्ट? फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था? एचपी नीचे था, वीपी ऊपर था। थर्ड क्वाड्रेंट में वीपी नीचे ऊपर है। तो हमें क्या करना होगा? 30 डिग्रीज एंगल डिग्रीज नीचे की तरफ ले आए। So you are taking 30 degrees एंड आ जाएगा B1 डैश, विल बी योर B1 डैश। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ तो B डैश है वो इस लाइन में कहीं पर आएगा। B डैश विल बी कमिंग समवेयर इन, ठीक है? ओके, नाउ दिया हुआ है 45 डिग्री, वो प्लान के साथ। दोबारा से वही क्वेश्चन बन सकता है। अगर मैं नीचे की तरफ बनाता हूं तो प्लान एक्स वाई लाइन के नीचे ही रह जाएगा, जैसे यहां पर है तो एंड बी यहीं पर आ जाएगा। वो हमें नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हमारा दूसरा सिरा है तो हमको ये 45 डिग्री यहां से 45 डिग्री यहां से ऊपर के डायरेक्शन में लेना होगा। और कितना कट करना होगा? जितना ये 80 mm यहां लिया है यहां पर कट करना। तो दिस विल बी योर B1, दिस विल बी योर B1। B1 शो करता है कि जो सिरा B है वो इस लाइन में कहीं पर आएगा, सिरा B इस लाइन में कहीं पर आएगा। B1 डैश क्या शो करता है कि B डैश इस लाइन में कहीं आएगा। पोजीशनिंग क्लियर हो गई? पोजीशनिंग हमने क्या करी, फिर रिपीट कर देता हूं। ए डैश के संग हमने 30 डिग्री लिया नीचे की तरफ और फुल एंड कट इस लाइन में आएगा। फाई हमने ए से बनाया प्लान से ऊपर की तरफ 45 डिग्री और उसमें टू लेंथ कट किया, वहां से हमको B1 आ गया, जिससे हमको ये पता लग गया कि B इस लाइन में आएगा। हमको ए डैश मालूम है, ए क्या निकालना है? हमको निकालना है B और B डैश, मींस द प्लान एंड एलिवेशन ऑफ एंड B। ओके, अगर आप इस चीज को समझें कि व्हाट इज ए डैश B डैश, तो आपको क्या लगेगा? अगर आप इस चीज को समझें कि ए डैश B डैश क्या है, व्हाट इज ए डैश एंड B डैश, तो आपको क्या मिलेगा? ये मिलेगा एलिवेशन लेंथ, एलिवेशन लेंथ ए डैश B डैश। अगर आप समझें ए बी ये क्या है तो मिलेगा प्लान लेंथ, एलिवेशन लेंथ एंड प्लान लेंथ। करेक्ट? अब आपके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आएगा कि एलिवेशन लेंथ कैसे निकाली जाए, हाउ टू गेट द एलिवेशन लेंथ, हाउ टू गेट, क्योंकि हमको यही तो निकालना है। यहां पर ए डैश मालूम है, ए मालूम है। अगर मेरे को बी डैश ए डैश की दूरी पता लग जाए तो मैं उसको कट कर दूं, क्योंकि मेरे को मालूम है बी डैश इस लाइन में आना है और बी इस लाइन में आना है, तो मेरे को डिस्टेंसेस है ए डैश। ओके, so you recall the last lecture जिसमें हमने आपको बताया था
कि ट्रू in plan, true length in plan will give you elevation, and true length in elevation will give you plan length. True length in plan will give you elevation length. True length in elevation will give you plan length. अब फिगर के ऊपर आ जाते हैं. What is true length in plan? फिगर पे आ जाते हैं. What is true length in plan? तो आपने ट्रू लेंथ इन प्लान देखना है साहब, तो प्लान पे चले जाइए. व्हाट इज प्लान? ए इज अ प्लान. ए इज अ प्लान. ओके, इसके संग ट्रू लेंथ कितनी कम करी हमने? इतनी 80 mm. तो क्या है ट्रू लेंथ? ए B1 इज द ट्रू लेंथ. क्या कंडीशन है एलिवेशन लेंथ निकालने की? इफ ट्रू लेंथ इन प्लान is there, then a distance parallel to XY line at elevation point is the elevation length. तो अगर मैं A डैश से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं, कहां तक? आपकी XY लाइन से पैरेलल तक ड्रॉ करता हूं. XY लाइन के पैरेलल A डैश से लाइन ड्रॉ करूं, और ये जो हमारा ट्रू लेंथ आया उससे ये डिस्टेंस मेजर करूं, तो ये आ जाता है हमारे पास. लेट मी फिगर इट आउट. ये मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी. ट्रू लेंथ इन प्लान B1 ये है. इससे मैंने प्रोजेक्शन ड्रॉ करके एक परपेंडिकुलर, ये जो आपकी डिस्टेंस आई, इसको एलिवेशन लेंथ कहेंगे. व्हाई? बिकॉज दिस इज ट्रू लेंथ इन प्लान, या पाई है. ओके, तो इसके पैरेलल मींस XY लाइन के पैरेलल A डैश से जो लाइन ड्रॉ करी वो ये आ गई. तो ये आपका जो पॉइंट आ गया, ये आपका पॉइंट आ गया एलिवेशन लेंथ. दिस इज योर एलिवेशन लेंथ. ओके, अब क्या करना है साहब? एलिवेशन को एलिवेशन में रोटेट करें. कहां है एलिवेशन? B1 डैश की जो लाइन है ये, इस पे हमारा एलिवेशन आना चाहिए. A डैश इज अ सेंटर एंड एलिवेशन लेंथ इज अ रेडियस, दिस मच. इसको लेकर आप जब नीचे रोटेट करेंगे, तो जहां पर भी इंटरसेक्ट करेगा ये, वो पॉइंट आ जाएगा B डैश. क्या किया? A डैश एज अ सेंटर एंड एलिवेशन लेंथ रेडियस, नीचे को रोटेट किया. व्हाई? बिकॉज B1 डैश इज हियर. ये आ गया. ओके, अब इसके बाद हमको क्या चाहिए? अब हमको चाहिए ट्रू लेंथ इन एलिवेशन. क्या निकालना है? प्लान लेंथ. क्या निकालना है? प्लान लेंथ. प्लान लेंथ निकालने के लिए ट्रू लेंथ इन एलिवेशन. एलिवेशन कहां है? A डैश ये रहा. तो इससे हमने जो ट्रू लेंथ ड्रॉ करी थी B1 डैश, 80 कट किया था. क्या निकालना है? प्लान. प्लान कहां पर है? A यहां पर. तो अगर मैं अब B डैश को मैं यहां लिखता हूं, जिससे कि लाइन इंटरसेक्ट नहीं होगी. ओके, अगर अब मैं क्या निकालना है? प्लान. प्लान कहां है? A ये. A से एक पैरेलल लाइन XY के ड्रॉ करूं, XY के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं, और इस पैरेलल लाइन के ऊपर जो ट्रू लेंथ है हमारी एलिवेशन, उससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं. तो जो ये लेंथ आई यहां से लेकर यहां तक की, ये आ गई आपकी प्लान लेंथ. नाउ दिस इज द प्लान लेंथ. जैसे ये एलिवेशन लेंथ आई थी, अब ये प्लान लेंथ आ गई. नाउ प्लान शुड गो इन B1 लाइन. आपकी जो B1 की लाइन है वो ये है. तो आपने इतना रेडियस लेके इसको यहां से रोटेट किया, एंड wherever it will cut the B1 line will be your plan B. अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको मिल जाएगा डैश
B, and it should be in a straight line क्योंकि ये plan and elevation है. So final is a plan. Join AB as a plan, and you can join A dash B dash as an elevation. ये आपका प्लान हो गया और ये आपका एलिवेशन हो गया. ओके, सो व्हाट आर द एंगल्स? आपने ये तो बनाया ही था फाई. अब ये जो एंगल आ गया, ये जो एंगल आ गया, ये क्या है? प्लान. तो प्लान क्या होता है? अल्फा. ठीक है. ए डैश बी डैश यहां से लेकर यहां तक एंगल आ गया, ये आ गया बीटा. Now you can write down true length 80, elevation length मेजर कर लीजिए, A dash B dash, प्लान लेंथ मेजर कर लीजिए, AB, थीटा आपने बनाया ही है यहां पर, एलिवेशन एंगल दिया हुआ है 30, पाई गिवन 45, अल्फा जो एंगल एक्स वाई लाइन के संग ये मेजर कर लीजिए, बीटा यहां मेजर कर लीजिए. तो आपका इस तरीके से ये 7 इनपुट्स आ जाएंगे. और आपका जो सवाल है वो मैं एक बार फिर से कहूंगा कि आप इसको समझ लीजिएगा, इसीलिए जूम कर दिया गया. तो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 26, 24, 25, 26, 27 and 28. In the next lecture we'll do the remaining questions. तो ये आपका शीट नंबर 4 पे काम शुरू हो जाएगा. शीट नंबर 4 के आपके दो शीट्स बनेंगी, शीट नंबर 4A एंड शीट नंबर 4B. इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके DHA काउंट होंगे, but you have to draw all the questions on the sheet. You can use both the sides of the sheet. You can use both the sides of the sheet, जिससे कि आपका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो जाए पेपर का और जो पेपर है वो वेस्ट ना हो. ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच. और अगर कोई भी आपको इसमें प्रॉब्लम आती है या कुछ समझने में नहीं आ रहा है तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि प्लीज रिपीट द फाइल. जिस पॉइंट पे आपको नहीं समझ में आता है दोबारा से देख लीजिए. अगर तब भी नहीं समझ में आता है, आपके पास टेक्स्ट बुक है, यू कैन रेफर द टेक्स्ट बुक. अगर अभी तक नहीं ली है तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज गो एंड परचेज द टेक्स्ट बुक. दैट इज वेरी वेरी हेल्पफुल. बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं समझाने में या वीडियो करने में नहीं क्लियर होते हैं, वो खुद पढ़ के सेल्फ स्टडी करके क्लियर करे जा सकते हैं. एंड अब तब भी नहीं समझ में आता है, देन यू कैन ड्रॉप अ मेल. आपको मेल आईडीज 3 मेल आईडीज बताए हुए हैं. और अदरवाइज यू कैन आस्क इन द इंटरेक्टिव क्लास कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ रही है. जिससे अगर आप पहले ही मेल कर देंगे वो कि हमको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इंटरेक्टिव क्लास कैन बी मेड much in a much better and much planned way. जिससे कि हमें क्या क्या पॉइंट्स कवर करने हैं, क्या क्या पॉइंट्स आपको बताने हैं, वो क्लियर हो जाए. अभी क्या होता है, आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम, देन यू आर जस्ट आस्किंग सर A3 शीट पे बनाना है, अभी सर लेआउट करना है, सर टाइटल ब्लॉक बनेगा, सर रोल नंबर लिखना है. हर बार आपके जो इंटरेक्टिव क्लास है that this type of questions are coming up. इसका मतलब काम आपने अभी या तो स्टार्ट नहीं किया है या आपको जो है कुछ अभी इंतजार है किसी चीज का. तो आई विल सजेस्ट प्लीज स्टार्ट द वर्क एंड कंप्लीट द वर्क, क्योंकि सडनली आपसे कहा जाएगा कि इसको जो है सबमिट करना है. अभी आपको कहा जा रहा है बनाते चाहिए, यू जस्ट कीप ऑन मेकिंग, है ना. तो आपको जिस दिन भी कहा जाएगा उसके
विद इन नो टाइम आपको सबमिट करना होगा, तो आपके पास टाइम नहीं रह जाएगा, यू विल लूज द मार्क्स। हर एक शीट के ग्रेड हैं, हर एक शीट में डीएचए इन्वॉल्व है, हर एक शीट में आपका जो डीएचए वो भी बन रहा है, दोनों चीज का काम हो रहा है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्लीज कीप ऑन डूइंग द वर्क। ओके, शीट नंबर 1, 2, 3 ऑलरेडी डन। शीट नंबर 4 के आपके 2 बनेंगे, 4A एंड 4B। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच।